Hello students, in continuation to the electrochemical cell that we had discussed in previous video also, now we have to talk about to find the cell potential of an electrochemical cell. We had discussed in previous video that concentration and temperature affect the EMF of the cell. What do we find? Now just to concise, just for a recapitulation, what do we find? That whenever we want to find EMF of an electrochemical cell, EMF which makes the electron to flow, we know it well. An electrochemical cell consists of an anode and cathode. Electron travels from anode to cathode. What makes them to flow? That is called electromotive force, that is called EMF. So this EMF makes the electrons to flow, and we know that when cell in its standard state, bachcho, what is the meaning of this standard state? Standard state means when in an electrochemical cell the concentration of solution used is 1 molar, temperature is 298 Kelvin and pressure is 1 bar. Normally it is to be taken into consideration when we have gaseous reactants or products in case of an electrochemical cell, but this is to be called as an standard states. The complete cell in its standard state, the EMF which we get, this is called EMF, or this is also called as E naught cell. Here naught stands for, naught represent the standard state of the cell. And how do we get E naught cathode minus E naught anode? Means standard potential of cathode and standard potential of anode, and you know it very well. For these cathode and for these anode, we use reduction potentials. Now if cell is not in standard states, now we have to use the Nernst equation. The Nernst equation is E cell is equals to E naught cell. This is a basic equation, I must say. E cell, that is cell potential, is equals to E naught cell, that is cell potential in standard states, minus 2.303 RT upon NF. F again stands for Faraday's constant, into log. Now just to simplify the things, I just made it molar concentration of product over molar concentration of reactants. Or if we take the temperature as 298 Kelvin, so then we can modify this equation also. Why we can do? No doubt, we know that concentration or EMF of the cell, I must say not concentration, sorry, EMF of the cell depends on concentration of electrode and temperature of that electrode. When concentration changes, when temperature changes, so then cell potential changes, and when cell potential changes, then EMF also changes. But as far as your CBSE syllabus is concerned, they are not taking the temperature into consideration. If in any question for your competition temperature change is also given, then apply this equation. And if temperature is not mentioned, means they consider temperature 298 Kelvin. So on placing the value of R, T and F, we modify this relation and this becomes a convenient relation to apply, where N is the number of electron exchange. I repeat, this equation only consider the change in concentration. Temperature change is not considered. Temperature we have to take 298 Kelvin. And if concentration change along with temperature change is to consider, then this basic equation is to be applied. Make it very clear. Now here I am taking, now question I am just considering with you, how to apply this. This तो you know, E naught cathode minus E naught anode, ये भी यहाँ अप्लाई करना आप सीख जाएंगे, लेकिन हमारे पास एक सेल दिया है. Now this is the cell representation. You all know, I told you ABC. A stands for anode, B stands for bridge, C stands for cathode. Means in this cell, this is anode and this is cathode, and it is very clear from their potential values also. Earlier also I have discussed with you whose reduction potential is more, that is to be considered as cathode, whose reduction potential is less, it is to be considered as anode.
Don't go after only numerical value, see the sign also. So for and check it कि whether reduction potentials are given. So it's very clear, not stands for standard states, and since they are showing metal ion changes into metal, means Mg di positive changes into Mg by gain of electron, Cu di positive changes into Cu by gain of electron. So this data confirms कि yes, we had been given reduction potential values and we had been given standard reduction potential values of magnesium and copper. From it is very clear, copper has more reduction potential value, so this is going to be cathode and this is going to be as an anode. Now secondly, you check it, concentration of ion is other than 1 molar. It's very clear, it is given 0.001 molar, it is given there 0.0001 molar. So means these concentrations are not in standard states. It's very clear, cell is not in standard states. And when nothing is mentioned, otherwise in question it will be given कि temperature, consider temperature is 298 Kelvin. So it's very easy कि we have to apply this relation. हमें इस relation को यहाँ apply करना है. अब हमको जब इस relation को यहाँ apply करने की बात आ ही गई, when we have to apply this relation, when we have to take this relation into consideration, what is this relation? Relation is E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 upon n into log molar concentration of products, molar concentration of reactants. Now to find this, हमें ये find करना है, हमें तीन चीज़ें यहाँ और चाहिए, E naught cell चाहिए, n चाहिए, products और reactants चाहिए. आप बड़े आराम से यहाँ cell reaction mention कर सकते हैं. ये एनोड है और ये कैथोड है. मैं आपको इजीएस्ट वे बता देता हूँ. एनोड में ऑक्सीडेशन चलेगा ना, मीन्स Mg डाई पॉजिटिव में जा रहा है. मैंने बताया था, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन. ये सेल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है. हमने लिखा ना Mg डाई पॉजिटिव, तो ये शो कर रहा है कि Mg डाई पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है. ये शो कर रहा है कि कॉपर आयन कॉपर में जा रहा है, मीन्स दिस कॉपर आयन इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर. एंड फ्रॉम चार्जेस मेक श्योर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन शुड बी सेम. इट्स क्लियर कि मैग्नीशियम चेंजेस इनटू मैग्नीशियम आयन, रिलीजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स. It's also clear copper ion changes to copper, it gains 2 electrons. So from here you get n is equals to 2. Even products you got. Now and remember, for products no doubt copper we have but it is in solid state. On reactant magnesium we have but it is in solid state. So during writing the concentration of product and reactant, we have to consider here in this question, I will discuss one more question, but in this question we have to consider the concentration of ions only, because in product this is solid, by convention we consider it as 1, it is also solid, it is to be taken as 1. So n is equals to 2. Now as far as products concentration is concerned, you got molar concentration of product, you will write that is molar concentration of magnesium ion, and molar concentration of reactant what you will write, molar concentration of copper ion. Now what else, हमको E naught cell चाहिए. बेटे E naught cell के लिए हम क्या करेंगे, it's very clear, we will write E naught cathode minus E naught anode. Now place the value. What is the value of E naught cathode? मालूम है आपको, कॉपर को लिखना है आपने, यहाँ से भी क्लियर है, वैल्यूज देख करके भी क्लियर है. आप रखो 0.34 माइनस एनोड फॉर मैग्नीशियम माइनस 2.37. You solve it, you get 0.34 plus 2.37, it becomes 2.71 volt. You got this E naught cell. Now place the values there. You will write there E naught cell, sorry, just place the value directly, that's better. E naught cell you got 2.71 minus 0.0591 upon n कितना मिला बच्चों, 2, प्लेस 2 इनटू प्रोडक्ट्स क्या है आपके पास, मोलर कंसंट्रेशन. देखिए प्रोडक्ट्स में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन और रिएक्टेंट्स में क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन. आपने वैल्यूज प्लेस किया 2.71, आप चाहे इसको डिवाइड कर दीजिए लेकिन इसको यहाँ माइनस मत करिएगा, टेक इट एज 0.0295 इनटू. नाउ दिस इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, ये आपको सेल से मिलेगा. आपने इसको रखा 0.001
अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन क्या रखा आपने 0.0001. You have to write log 0.001 अपॉन 0.0001. ये देखो नॉर्मल सी मिस्टेक है, बट ये बड़ी प्रॉब्लम कर सकती है. एज आई मिस्ड यू कैन ऑल्सो मिस. तो आपने इसको ध्यान रखना है. एंड इंटेंशनली आई डिड दिस कि देखो हम यहाँ मिस्टेक कर गए. ये ध्यान से नहीं, इसको ध्यान से करना है, ये गलती ना लगे. मैंने जानबूझ के इस मिस्टेक को किया कि आपको बताऊं कि देखो लॉग हम मिस कर गए थे यहाँ पर. नाउ लिसन, ये लगती है मिस्टेक, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. 2.71 minus 0.0295 into log. Now this is 0.001 upon 0.0001. Make it equal. मालूम यार, मैथ्स जानते हो आप, जीरो प्लेस करके कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट log 10. log 10 की वैल्यू मालूम है, log 10 की वैल्यू 1 होती है log 10 बेस पर. तो यू गॉट इट एज 2.71 माइनस 0.0295 इंटू 1. बस आपने माइनस कराना है. आपने इसको माइनस किया. 2.71 0.0295 00. You got it as 5, you got it as 0, you get it as 8, you get it as 6. What is the answer? 2.6805 volt. कूल माइंड से करना चाहिए, कूल माइंड से समझना चाहिए. ई सेल आ गया and you got this E cell when the cell is not in standard states. One more small numerical I just to take. मैंने क्या बोला यहां? मैंने बताया कि सिर्फ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में आयंस की कंसंट्रेशन को लो. एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं आपसे. लेट अस कंसीडर, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग थ्रू द वीडियो. नाउ व्हाट डू वी फाइंड? लेट अस कंसीडर वन मोर क्वेश्चन. हमको एक क्वेश्चन दिया. हमको एक क्वेश्चन क्या दिया? दिस इज CD. Means again we have to find the value of EMF. This is CD dye positive oblique 0.10 M salt bridge. This is H positive 0.20 M oblique platinum. Here H2 and this value is 0.5 ATM. And what else is given? E naught CD dye positive oblique CD is equals to minus 0.403 volt. ये एक क्वेश्चन दिया है, हमसे बोला फाइंड EMF. क्लियर है आपको कि सर सेल स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है. आप कहेंगे सर देखो मैं बता दूं, ये एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है. आप कहेंगे सर ये H भी है, H2 भी, प्लेटिनम भी. यार पढ़ा है आप लोगों ने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रोड होता है प्लेटिनम होता है. उसमें हाइड्रोजन के गैस पास करते हैं, उसका प्रेशर दिया होता है. H की कंसंट्रेशन गिवन होती है. दैट इज ऑल गिवन टू अस. सेम. क्या सेल अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में है? बोलो. यस, सेल अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है. वेरी गुड. सेल अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है. और जब सेल अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, आपको बोला EMF निकालो. क्या यूज करेंगे? नर्स्ट इक्वेशन. नाउ अप्लाई दिस. सेम आपने नर्स्ट इक्वेशन को यूज करने की सोची, और जब आपने सोची तो आपने क्या रिलेशन लगाया? E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N इंटू लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सेम आपको अभी जैसे किया. हमें सब ये चीजें चाहिए. हम सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखेंगे. बताओ क्या है बच्चों? बोलो. एनोड. वेरी गुड. और ये क्या हो जाएगा? कम ऑन. वेरी गुड. कैथोड. तो ये बना एनोड और ये बना कैथोड. आपने EMF इसका फाइंड करना है. अब एनोड का मीन्स क्या हुआ? कैडमियम आयन में जाएगा. मैंने बोला सेल्स देख करके सेल रिएक्शन पता लगता है. तो मीन्स आप क्या लिखेंगे? व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द सेल रिएक्शन, यू विल राइट कैडमियम चेंजेस इनटू, दिस इज CD एंड इट चेंजेस इनटू CD डाई पॉजिटिव. नाउ हियर व्हाट यू विल फाइंड? ओके नेक्स्ट, ये रिएक्टेंट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा. प्लेटिनम तो भैया इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इट इज नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन रिएक्शन. इसने तो एक सरफेस प्रोवाइड कराना है रिएक्शन के लिए. रिएक्शन तो इनका होगा. मींस H आयन H2 में कन्वर्ट होगा. आप लिखेंगे H आयन चेंजेस इनटू H2. बैलेंस करना आता है भाई, 12th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हो. H2 लिखा है तो यहाँ ट्वाइस H लिखना पड़ेगा. सिंपल. नाउ व्हाट यू जस्ट डू, चेक इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बराबर है या नहीं. कैडमियम से कैडमियम डाई पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ. ट्वाइस H मीन्स एक H ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ट्वाइस H ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया. सेम, यू गेट N इज इक्वल्स टू 2. नाउ व्हाट नेक्स्ट?
आपको चाहिए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। बेटे अब क्या चीज़ आएगा, जब आपने प्रोडक्ट्स में देखना है आपने, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है, इसका प्रेशर भी यहाँ मेंशन है। प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन गैस का प्रेशर इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। पीछे सिर्फ आयन था, दूसरा मेटल सॉलिड था, दैट्स वाई वी इग्नोर्ड। यहाँ इग्नोर नहीं कर सकते, हम लिखेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन और हम जरूर लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ये प्रोडक्ट्स के टर्म्स में आएगा। और रिएक्टेंट्स के टर्म्स में क्या आएगा, रिएक्टेंट में बेटे आपके पास कैडमियम सॉलिड छोड़ दो, HN बचा, मींस रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन आएगी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। दूसरी बात, प्रोडक्ट्स भी मिल गए, रिएक्टेंट्स भी मिल गए, N भी मिल गया, E0 सेल आपको और चाहिए। क्या तरीका है, E0 सेल, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। लगाओ वैल्यूज। कैथोड क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है भैया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम यहाँ स्टैंडर्ड तो यूज करेंगे, 0 माइनस कैडमियम का क्या दिया हुआ है वैल्यू, माइनस 0.403, तो E0 सेल आपके पास निकल के आ गया 0.403 वोल्ट। बस सब कुछ मिल गया आपको। नाउ प्लेस द वैल्यू। बताओ E0 सेल क्या रखोगे, 0.403 माइनस 0.0591 अपॉन n। बताओ n क्या रखोगे, यू गॉट 2 इंटू लॉग। अब बताओ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट में तो दो चीजें आ गई ना, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H आयंस। बट एक चीज है माय डियर, यहां पर कितने H आयंस हैं रिएक्टेंट्स में, 2 रेज़ टू द पावर 2 रखना पड़ेगा आपको। चलो आगे, 0.403 इट बिकम्स माइनस 0.0295, डिवाइड कर दो, नो इशू, इनटू, अब कैडमियम आयन की कंसंट्रेशन क्या दिया आपको, 0.1 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है, 0.5 अपॉन H आयंस की कंसंट्रेशन क्या दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 0, देखो आप चेक करो, 0.2 स्क्वायर करना है ना, तो 0.2 इंटू 0.2 लिख दीजिए आप। अब डेसिमल इज कैंसिल बाय डेसिमल, अगेन लॉग 0.1 इंटू 0.5 अपॉन 0.2 इंटू 0.2, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल किया, यू गॉट 0.403 माइनस 0.0295 इंटू, ये बचेगा log 5 अपॉन 4। नाउ अकॉर्डिंग टू log वैल्यू, पहले भी हमने देखा था log a अपॉन b आता है, log a माइनस log b। आप इसको करोगे 0.403 माइनस 0.0295 इंटू, यह है log 5 अपॉन 4, हम इसको लिखेंगे log 5 माइनस log 4। देन वी हैव टू प्लेस दिस वैल्यू 0.403। देखो मैंने अभी तक सबसेक्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपने इसको किया माइनस 0.0295, दिस इज 0.0295 इंटू log 5 की वैल्यू क्या होगी, ये लॉग टेबल से आपको मिलेगी। अब लॉग टेबल तो इस वक्त यहाँ है नहीं, लेकिन हाँ कुछ वैल्यूज फिक्स होती हैं दैट आई एम यूजिंग हियर। log 5 की वैल्यू होती है 0.6990 माइनस log 4 की वैल्यू होती है 0.6020। ये कुछ फिक्स वैल्यूज हैं, कई बार क्वेश्चन पेपर में आती है, और अदरवाइज आपके पास कभी कभी क्या होता है कि यहाँ आपके पास क्वेश्चन पेपर में आने के साथ साथ आपको लॉग टेबल भी प्रोवाइड कराई जा सकती है। नाउ डू वन थिंग, व्हाट नेक्स्ट, आप इसको चलिए ई सेल आपने निकालना है, कितना आएगा आपके पास 0.403 माइनस 0.0295 इंटू, इसको सबसेट कर दीजिए। आपने इसको सबसेट किया, यू गॉट 0, चेक इट सबसेक्शन 0, 9 में से 2 लेस हुआ 7, फिर आपके पास कितना आ जाएगा, इट विल बी 9 एंड देन यू विल गेट 0। आई होप इट इज क्लियर, करेक्ट सबसेक्शन इज देयर, गुड। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपने किया 0.0295 into 0.0970, whereas and when you multiply you get 0.403 minus 0.003. You can do it, and as and when you get it, answer comes to be that E cell comes to be 0.400 volt. ये आपके पास E cell की वैल्यू आ गई।
तो मैंने जानबूझ करके आपसे जस्ट डिस्कस 2 क्वेश्चंस। एक में मैंने ये बताने की कोशिश की कि प्रोडक्ट में कभी कभी आपको उनकी कंसंट्रेशंस को यूज करना पड़ेगा, खास तौर से जब गैसेस रिएक्टेंट्स आ जाएं, गैसेस प्रोडक्ट्स आ जाएं, उस दौरान जो गैस के पार्शियल प्रेशर्स वो होंगे आइदर दे ऑन प्रोडक्ट और इन रिएक्टेंट, देन वी हैव टू यूज। पीछे वाले क्वेश्चन में सिर्फ आयंस को लेकर के चला था मैं, क्योंकि वहां बाकी दोनों तरफ सॉलिड मेटल्स था। बट इस क्वेश्चन में क्योंकि गैसेस प्रोडक्ट था तो हमें गैसेस प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर यहां यूज करना था। इसको बताने के लिए क्वेश्चन मैंने लिया है। आई होप यू गॉट हाउ टू अप्लाई दिस Nernst equation to getting the EMF. So this is an important concept. Read it, just rewatch it and subscribe the channel. You will get more such videos. Thank you.